Today's topic of discussion is lean manufacturing system. Now this is a very significant concept that is gaining importance these days as far as production systems are concerned. The basis of lean manufacturing system is on waste elimination, right? यहाँ पर waste को eliminate बिल्कुल reduce किया जाता है और eliminate करने की कोशिश की जाती है. Cost reduction, cost जितना reduce करेंगे उतने ही profits आपके maximize होते जाएंगे. And employee empowerment, तो employees को एक skilled workforce के अंदर convert किया जाता है, उनको कुछ powers और authorities delegate की जाती हैं and a number of tasks are assigned to them to have their overall development. So remember, lean manufacturing, the basis is on waste elimination, cost reduction and employee empowerment. वो points जिनके बारे में अभी आपको बताया गया था. और lean manufacturing is a philosophy. It's a system that utilizes less amount of input. तो ये input को तो कम से कम utilize करने की कोशिश करती है जिससे कि wastage भी कम से कम रहे. Creating the same output, right? जो पहले के traditional production systems थे, वो ज़्यादा input लेकर मान लीजिए एक set output create करने की कोशिश कर रहे थे. तो lean manufacturing भी उतना ही output create करेगा, but by taking less amount of input, right? तो traditional production system और lean manufacturing system दोनों अगर same 1000 किलो का output maintain कर रहे हैं या production कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम जितना इनपुट्स ले रहे थे, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उससे कम इनपुट्स के अंदर उतना ही आउटपुट क्रिएट करने की कोशिश करता है. सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय क्रिएटिंग द सेम आउटपुट्स एंड इंक्रीज्ड वैरायटीज टू द एंड कस्टमर. जो एंड यूजर है उसको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी अवेलेबल करवाने का प्लान करते हैं, राइट? नाउ मेथोडोलॉजी is based on new system design. It's totally a new design. Continuous gains in productivity. Productivity यहाँ पर regularly increase, उस पे की जाती है. Low unit costs are maintained, satisfying customer expectations and superior quality and prompt delivery. Quality के ऊपर main focus है कि quality has to be, the utmost of superior quality and the delivery should be prompt so that good customer relations can be maintained. The best example of lean manufacturing is Subway restaurant, where the customer decides his own type of bread, the meat, the cheese, the vegetables that he wants to incorporate in his Subway sandwich और एनी फॉर्म ऑफ बर्गर. तो सबवे के अंदर जैसे जैसे कस्टमर्स अपना डिमांड कर रहा है कि उसको किस टाइप का ब्रेड चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स अपने सैंडविच के अंदर चाहिए या बर्गर में चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किस तरह का मीट चाहिए, तो वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. एंड द डिलीवरी शुड बी प्रॉम्प्ट. जो डिलीवरी है वो प्रॉम्प्ट होनी चाहिए विदाउट एनी डिले to have the highest level of customer satisfaction, right? So remember, customer expectations need to be satisfied and they can be satisfied only when the product is of superior quality and the delivery is prompt. So these are some of the key concepts of lean manufacturing. Now remember the key features. जो features है जिन पर आपको ध्यान देना है, एक तो मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स. मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स का मतलब है जो वर्कर्स हैं दे आर ट्रेन्ड टू डू अ नंबर ऑफ जॉब्स. ऐसा नहीं कि केवल एक ही जॉब मोनोटोनसली रूटीन किए जा रहे हैं. ओवर हियर द वर्कफोर्स इज स्किल्ड एंड दे आर ट्रेन्ड टू डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स. दैट इज व्हाट आई मीन बाय मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स. नंबर 2, you have to have the short setup time. Now short setup time का मतलब है the aim is to please the customer by producing the products which he has ordered. जो भी उसने ऑर्डर किया हुआ है कस्टमर ने, उन्हीं प्रोडक्ट्स को
यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है, और सिंस यू नो द ओनस इज ऑन कस्टमर डिमांड, तो जो कस्टमर डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. सो द सेटअप टाइम इज वेरी शॉर्ट. दैट इज यू नो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट. यहाँ पर एम्प्लॉयज का इन्वॉल्व होना जरूरी है. एम्पावरमेंट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एम्पावरमेंट यहाँ पर एम्प्लॉयज को कुछ अथॉरिटीज दी जाती हैं, कुछ पावर्स डेलीगेट की जाती हैं, एंड दे आर ट्रेन टू डू वेरिड अमाउंट ऑफ जॉब्स. अलग अलग तरह के जॉब्स करते जाते हैं वो, तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी मैक्सिमम होता है. एंड सिंस दे आर एम्पावर्ड to do various kind of jobs, they are empowered to take many decisions on their own, so their satisfaction level is also very good as far as lean manufacturing is concerned, thereby achieving the highest level of efficiency and productivity among the employees. तो एम्प्लॉयज जो वर्कर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग में. उनको काफी पावर्स दी जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट वो ऑलराउंड हो सके. सप्लायर इन्वॉल्वमेंट. नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, one has to maintain good relations with the suppliers so that they are supplying the raw materials at a very regular interval of time. क्योंकि अगर सप्लायर्स रॉ मटेरियल को टाइमली नहीं सप्लाई करेंगे तो ये जो पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है इट माइट फेल. सो देयर हैज टू बी गुड सप्लायर रिलेशंस, एंड दैट इज व्हाई सप्लायर इन्वॉल्वमेंट इज आल्सो देयर, बिकॉज़ दे आर देयर लॉन्ग टर्म पार्टनर्स. तो लॉन्ग टर्म पार्टनर्स है सप्लायर्स, उनका इन्वॉल्वमेंट भी इस प्रोडक्शन सिस्टम में काफी रहता है. एंड हेल्दी रिलेशंस विद सप्लायर्स आर मेंटेन्ड टू एंश्योर अ स्मूथ supply of raw materials. Next is improved quality through immediate feedback. Earlier जो पहले के प्रोडक्शन सिस्टम हुआ करते थे उसमें जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती थी तब कोई उसमें डिफेक्ट या फ्लॉ था उसको आइडेंटिफाई किया जाता था. राइट, बैच प्रोडक्शन में भी ऐसा होता था. प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो गई, बाद में इंस्पेक्शन किया, डिफेक्ट निकला तो उस पूरे लॉट को ही रिजेक्ट कर दिया जाता था. बट लीन मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसेस कॉस्ट एंड रिड्यूसेस रिजेक्शन लेवल. अगर प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही कहीं पर भी कोई फ्लॉ पाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, तो उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और आइडेंटिफाई करते ही उस मिस्टेक को रेक्टिफाई भी कर लिया जाता है. जब उस मिस्टेक को ऑपरेशन के दौरान ही रेक्टिफाई कर लेंगे तो आगे चलकर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल ऑलवेज बी ऑफ वेरी सुपीरियर क्वालिटी, और उससे रिजल्ट क्या होगा कि उसके रिजेक्शन के चांस बिल्कुल नील रहेंगे. जब रिजेक्शन ही नहीं होगा, वेस्टेज ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली कॉस्ट्स तो आपकी कम से कम रहेंगी और प्रॉफिट्स मैक्सिमम रहेंगे. सो द क्वालिटी इज ऑलवेज इंप्रूव्ड थ्रू इमीडिएट फीडबैक. इमीडिएट आइडेंटिफाई कर लिया जाता है उस फ्लॉ को, उस मिस्टेक को, और उसको करेक्ट करने के लिए कोर्सिव एक्शन, जो करेक्टिव एक्शन है, वो भी हाथ के हाथ ले लिया जाता है. सो दीज आर द की फीचर्स. मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स, देन शॉर्ट सेटअप टाइम, राइट, ऑर्डरिंग टाइम इज आल्सो वेरी लेस. और ऑर्डरिंग टाइम, जैसे ही ऑर्डर किया हाथ के हाथ आपको उसका प्रोडक्शन करके देना होता है जैसे ही आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ है. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, सप्लायर इन्वॉल्वमेंट इज देयर, लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं आपके, हेल्दी रिलेशंस हैज टू बी मेंटेन्ड विद द सप्लायर्स, improved quality through immediate feedback. Next, we move on to the components of lean manufacturing. There are two components of lean manufacturing: pull production system and push production system. तो दो तरह के प्रोडक्शन सिस्टम है. एक तो पुल प्रोडक्शन सिस्टम. दोनों में डिफरेंस क्या है? पुल प्रोडक्शन सिस्टम is that system which is based on customer demand as the primary driver for the production planning. तो पुल प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो कस्टमर डिमांड के ऊपर बेस्ड है. जैसे जैसे कस्टमर का डिमांड जनरेट होगा प्रोडक्शन उसी टाइम स्टार्ट किया जाएगा. सो इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिमांड
विच प्रोडक्शन सिस्टम? पुल। और जो पुश प्रोडक्शन सिस्टम है वो बेस्ड है एस्टिमेटेड डिमांड के ऊपर। यहां पर पहले ही वॉल्यूम में प्रोडक्शन कर लिया जाता है, एक डिमांड को एस्टिमेट किया जाता है कि हमारी इस मंथ की डिमांड 10,000 यूनिट रहेंगी या 20,000 रहेंगी या 40,000, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन कर लिया जाता है। वो होता है पुश में, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड डिमांड, एंड पुल प्रोडक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड। जैसे कस्टमर का डिमांड आ रहा है वैसे ही प्रोडक्शन सेटअप एक्टिव हो जाता है और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। पुश में इट इज अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग the use of production capacity and is based on estimated demand. See what I told you, it is based on estimated demand. It allows the companies to produce in large volumes. The volumes over here are large, thereby reducing the cost per unit. तो यहाँ पर volumes higher रहती हैं और जिसकी वजह से cost per unit कम रहती है. But remember the difference between the two. Pull production system is based on actual demand. As and when the demand is generated, the production processes commence, and push production system is based on estimated demand. Demand के बारे में एक estimate लगा लिया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू कि हमारी इतनी डिमांड रहेगी, जैसा आपको बताया था 40,000 यूनिट्स का डिमांड है, तो उस एस्टिमेटेड डिमांड के अकॉर्डिंग हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन कर लिया जाता है और उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट होती है वो कम से कम रहती है। So these are the components. Previously we discussed the key features. Now we come to the steps. The steps which are involved in lean manufacturing system. Overall there are 5 steps. You have to identify the value, identify value stream, improve flow, allow full production system, and work towards perfection. अब इसमें आइडेंटिफाई वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस, कस्टमर्स की चॉइसेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट की वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन होता है और उस वैल्यू को फिर कंटिन्यूअसली इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर, सो दैट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अटेन्ड. So identifying value basically means identify those values which add to the superiority of the product. और यहाँ पर कस्टमर का स्टैंड पॉइंट, कस्टमर का व्यू, कस्टमर का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी होता है. Now once the value is identified, the activities that contribute the value are streamlined. पहले तो वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली जाती है जिससे कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि जो वैल्यू रहेगी प्रोडक्ट की वो जितना ज्यादा सुपीरियर हो उतना ही ज्यादा सुपीरियर रहेगा प्रोडक्ट. और वैल्यू के बाद फिर वैल्यू स्ट्रीम को आइडेंटिफाई किया जाता है. वैल्यू स्ट्रीम का मतलब ऑल दोस कोर एक्टिविटीज व्हिच ऐड टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और नॉन वैल्यू एक्टिविटीज से उनको डिफरेंशिएट कर लिया जाता है. तो वैल्यू एक्टिविटीज व्हिच आर एडिंग टू द कोर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन वैल्यू एक्टिविटीज. वो सेकंड स्टेप है. तो वैल्यू स्ट्रीम का मतलब फुल जो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है व्हिच आर एडिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. पहले तो वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली और उस वैल्यू के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जरूरत है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को बोला जाता है वैल्यू स्ट्रीम. नेक्स्ट इंप्रूव फ्लो. इंप्रूव फ्लो का मतलब है कंटिन्यूटी मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है प्रोडक्शन के अंदर. ऐसा नहीं हो कि वो जो फ्लो है वो बीच बीच में इंटरप्टेड रहे. तो प्रोडक्शन स्मूथ रखने के लिए आपको पूरी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का एक फ्लो स्मूथ रखना जरूरी होता है. There should not be unnecessary interruptions or halts, right? Once you identify the sequence of activities, तो आपको वो जो एक्टिविटीज हैं जो वैल्यू को क्रिएट कर रही है एक प्रोडक्ट के अंदर, उन एक्टिविटीज के अंदर एक फ्लो, एक कंटिन्यूटी बनाना जरूरी होता है. That is the third step. Allow pull production system. लीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे कोर कंसेप्ट है पुल प्रोडक्शन सिस्टम.
तो आपने पहले प्रोडक्ट की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, उसकी एक्टिविटीज जो हैं जो वैल्यू क्रिएट कर रही है वो आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये एंश्योर किया कि एक फ्लो बना रहना चाहिए, और आपको जो प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पर लागू करना है वो है पुल प्रोडक्शन सिस्टम, कि जैसे ही कस्टमर का डिमांड क्रिएट हुआ है आपके प्रोडक्शन दे आर इन फुल स्विंग, right? So your production is based on the customer's demand. That is what I mean by pull production system. Pull on actual demand of the customers. Push is an altogether different thing that is based on estimated demand. But over here the focus is on pull production system. Number 5, work towards perfection. Everybody, every organization who wants to be successful has to achieve this level called perfection. Perfection is maintained by tremendous research, by continuity, by hard work. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आपके ये steps follow कर रहे हैं, ultimately they should lead to the perfection level. तो आपको, in fact, all the employees, the employer, the whole organization should strive, should work hard to achieve the perfection level and to maintain the level of perfection. तो आपको पहले तो अचीव करना है, उसके लिए वर्क करना जरूरी है, और जब वो परफेक्शन लेवल अचीव हुआ तो उसको मेंटेन करना भी जरूरी है to be successful in the long run, right? Now the benefits of lean manufacturing system, they are very easy to understand, क्योंकि जो हमारा फोकस चल ही रहा था लीन मैन्युफैक्चरिंग का, और जो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है वही इसके सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे. रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, रिड्यूस फ्लोर स्पेस. द बेनिफिट इज रिडक्शन ऑफ फ्लोर स्पेस. unnecessary activities are generally eliminated, waste is eliminated over here, floor space is always kept compact. Only those machines are installed which are required as per the customer's demand. तो आपको ये ध्यान रखना है कि unnecessary यहाँ पर कोई operations carry out नहीं किए जाते, unnecessary machines are not installed, thereby leading to the reduction of floor space. Unnecessary floor space will ultimately increase the costs in the longer run due to material handling, due to increased rent of increased floor space. So reduction of floor space is again a key benefit of lean manufacturing. Elimination of waste, the basic idea behind lean manufacturing, thereby increase in profits. Waste को eliminate करेंगे, आपके profits अपने आप ही बढ़ते जाएंगे. Good customer relations. Customer relations obviously will be on a good level when you are giving the superior quality product at a low cost. तो आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी सुपीरियर है, कॉस्ट्स आपकी कम है, thereby customer satisfaction level is achieved and hence you will be achieving good customer relations. Employee empowerment, ये आपको पहले ही बताया था, एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाता है, they are empowered to take decisions on their own, they are trained to do skilled tasks, a number of variety of jobs they are doing. Employee empowerment is there and employee involvement is also there. Increased productivity and efficiency. When the workforce is highly skilled, when they are trained to become highly skilled, obviously they are going to have improved productivity and improved efficiency levels. Helps to keep the business going. Once you employ lean manufacturing systems, you are eliminating waste, you are reducing the floor space, you are empowering employees, you are eliminating waste, you are cutting down all the costs. So ultimately the profits are continuously increases. Your supplier relations are very good due to this system. Customer relations are excellent. Therefore, there is no reason why the business is not going. So the business will keep on increasing. It will keep on going due to lean manufacturing system.